Hello children, yes we are going to start the chapter The Gift of the Magi or Maggie. $1.87, that was all, and 50 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher as best as she could. 3 times Della counted it $1.87, and the next day would be Christmas. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little coach and haul, so Della did it. This only shows that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. She lived in a furnished flat at $8 per week. It was a poor flat, more suited for the mendicants. At the door was a letter box into which no letter would go, and an electric button which no finger could ring. But whenever her husband, Mr. James Dillingham Young, came home and reached his flat, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to as a Della. Della finished her cry and attended to her chips with the powder rack. She stood by the... In the whole chapter we are going to start the story of Maggie. इसमें क्या होता है, मैजी एक कंटेनर से पैसे निकाल के काउंट कर रही होती है. जैसे आपको कुछ खरीदना हो तो आप गिनते हैं ना कि मेरे पास सफिशिएंट मनी है कि नहीं, तो वैसे वो भी गिन रही होती है. वो $1.87 थे टोटल पैसे जो उसने इकट्ठा किए थे. और वो कैसे उसने इकट्ठा किए थे, बहुत सारी जैसे ग्रॉसरी राशन की दुकान पे बार्गेनिंग करके, इसके साथ साथ वेजिटेबल शॉप पे, बचर की शॉप पे, जहाँ भी वो जा सकती थी, जहाँ वो बार्गेनिंग कर सकती थी, वहाँ से उसने बचाए थे ये पैसे, बिकॉज वो कहीं जॉब नहीं करती थी. इसके साथ ही बहुत मतलब दुखी रहती थी, लेकिन फिर भी इतने दुख में भी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी. शी लिव्ड इन अ फर्निश्ड फ्लैट. वो एक फ्लैट में रहती थी छोटे से, जिसका किराया $8 पर वीक था. और ये बहुत पुअर, बहुत लो क्लास फ्लैट था. ठीक है, इस फ्लैट के बाहर एक लेटर बॉक्स था जिसमें कभी कोई लेटर नहीं आता था, कोई चिट्ठी नहीं भेजता था. और इसके साथ घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई थी जिस पे कोई फिंगर कभी नहीं लगती थी, कोई नहीं जल्दी उनके घर आता था इसका मतलब. और हाँ, शाम के टाइम या रोज़ इसका हस्बैंड, जिसका नाम है मिस्टर जेम्स डिलहैम, वो शाम को आते थे, जिसको उनकी पत्नी, जिसका नाम है डेला, जिसके बारे में भी आपको बताया, वो उनको इंट्रोड्यूस कराती थी और उनसे आके मिलती थी. तो दोनों मतलब एक दूसरे से ही मिलते थे क्योंकि वो सुबह वॉक करने जाता था और शाम को नौकरी करके वापस आता था. और डेला जो होती है पैसे काउंट करते करते क्राई कर रही होती है, और इसके बाद उसने अपने आंसू पोछे और इसके बाद अपनी चीक्स पे पाउडर रैक किया, मतलब पाउडर लगाया, जिससे वो देखने में रोती हुई ना लगे. ओके, लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट पेज ऑफ द गिफ्ट ऑफ मैगी. In this page, window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are only $1.87 to buy the present for him, Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare, sterling, something just a little bit near to being worthy of honor of being owned by Jim. There was a glass between the window of the room. Suddenly Della reeled from the window and stood before the glass,
Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. Now there were two positions of James William Young in which they both took a mighty pride. One was James' gold watch that had been his father and his grandfather. The other was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the road, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry, just to depreciate Her Majesty, jewel and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see his pluck the beard from envy. क्या हुआ? वो विंडो के बाहर देख रही थी, उसने देखा कि बाहर एक ग्रे कलर की कैट वॉकिंग कर रही थी और उसको पता था कि अगले दिन क्रिसमस है। जैसे हम लोग में दिवाली होती है, दिवाली के पहले डेकोरेशन, साफ़ सफाई, तो वैसे ही वहाँ पे भी क्रिसमस मनाया जा रहा था और क्रिसमस आने की वजह से पहले से डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी सबके घर के बाहर, मतलब सब कुछ अच्छा था। और यही सोचते सोचते वो ये भी सोच रही थी कि मेरे पास सिर्फ $1.87 मनी है और इतने में उसको जिम के लिए, जिम यानी उसके हस्बैंड के लिए क्या खरीदना था? गिफ्ट खरीदना था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि हम लोग किसी भी फेस्टिवल पे अपने रिलेटिव्स को, वो अपने जानने वालों को गिफ्ट देते हैं, तो वो भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती थी, जबकि उसके पास पैसे जो थे वो काफ़ी कम थे, उतने में गिफ्ट आना बहुत मुश्किल था। और यही सोच में वो बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। तो देखते 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 उसको समझ में आया कुछ, और उसने अपनी जो लंबे बाल थे उसको खोला और उसकी लेंथ नापने लगी कि कितने लंबे हैं मेरे बाल, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई बिकॉज उसके बाल बहुत लंबे थे, वो अपने बालों के साथ करने वाली थी। इसी के साथ ही उसके जो हस्बैंड थे उसके पास गोल्ड की वॉच थी जो कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, मतलब ग्रैंडफादर ने और उसके फादर ने उनको दी थी, ठीक है। तो उस वॉच के लिए वो क्या खरीदना चाहती थी? बहुत अच्छा सा प्लैटिनम फॉब खरीदना चाहती थी, जिससे उस वॉच में वो लगा के उसको गले में या जहाँ भी पहनना चाहे वो पहन सकता है, ठीक है। तो दोनों लोग कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे होते हैं, मतलब जिम भी कर रहा होता है प्लान डेला के लिए, और डेला भी जिम के लिए सोच रही होती है कि वो पैसे कहाँ से लाए, कहाँ से गिफ्ट। इसके लिए हम नेक्स्ट डे की क्लास देखेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।